Hello all, I welcome you to the sixth lecture of this casting process. I hope all of you are well and healthy. So let's start this lecture with brief introduction of myself. My name is Divyanshu Pandey. I have done my master's from IIT Kanpur and I'm having 3 years of teaching experience, currently working as assistant professor under TACE project in Engineering College, Halawar. So in today's lecture, I have added some numericals problem and some theory problem from previous year and from gate basically. So till now we have covered the design of gating element, different kind of patterns which we use in casting and all the allowances. So let's just start with the numerical. So this question was given to you in last lecture and I told you that you need to solve this question and I'll give you a solution in this lecture. So I think you have solved this question. So I'm going to just solve this problem. You need to check whether your answer is correct or not. And if you find any error in your solution, then correct yourself. So this question was from getting system. गेटिंग रेशियो यहाँ पर दिया हुआ है और कास्टिंग हमें बनाना है 20 kg का एंड द डेंसिटी इज ऑल्सो गिवन एंड द टाइम इज ऑल्सो गिवन. Okay, we need to find out what is the dimension of gate. Okay, so first of all we need to see this gating ratio. So if you have seen my fifth lecture, in that lecture I've told you about this gating ratio, and by observing this gating ratio only you can conclude that sir, the sprue, the area of sprue, the ratio of sprue is less here because this is a ratio between a sprue, runner and gate. So that's why the sprue ratio is less. It means it is unpressurized gating system and this choke area will be of sprue. ओके क्योंकि यहाँ पे जो अनप्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम है, जो चोक होता है वो स्प्रू के नीचे होता है. मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट विल बी द चोक एरिया. ओके, और चोक एरिया से हमको स्प्रू एरिया का पता चल जाएगा. व्हाई? बिकॉज दिस गेटिंग रेशियो इज गिवन फॉर unpressurized gating system. It means the choke area will be equal to sprue area, and by this ratio I will be able to find out what will be the area of gate, and by that area I can calculate the dia of the gate. Okay, so first of all I need to write the formula of choke area. So it was mass upon rho ct under root 2g h. So this was the formula of choke area. Okay, so just put the values here. What is the value of mass? 20 kg, and the density is this, and the coefficient of discharge is also given 0.9, and it take time about 11 seconds to fill the casting, and 2 into 9.81. And what is the height? Height of the liquid metal above the gate is 300 mm. So I need to change this dimension into meter. So it will be 0.3. Okay, so I think till here everything is clear. केवल मैंने वैल्यू पुट किया है और कुछ यहाँ पे करा नहीं है. और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.000308. It means it will be 0. No, directly multiply this thing by 10,000. तो आपको जो वैल्यू आएगी 3.08 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगी. तो ये जो वैल्यू है ये मीटर स्क्वायर में है. अब इसको मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ. ओके, इसको इस वैल्यू को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए आई मल्टीप्लाइड दिस थिंग बाई 10 to the power 4. Then it will be in centimeter square. So 3.08 centimeter square, and this choke area will be equal to area of sprue. Okay, now see this ratio. So the ratio between sprue and gate, हमें गेट का डायमेंशन पूछना है तो सीधे गेट के बारे में बात करते हैं. So if sprue area is this, then according to this relation AG will be equal to 3 times of sprue area. It means अगर आप मल्टीप्लाई यहाँ पर करोगे तो कितना आ जाएगा 6.2 सेंटीमीटर स्क्वायर.
और इसको आप बराबर कर दीजिए पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 के। ओके, क्योंकि जो आपका गेट होगा वो सर्कुलर ही होगा सर। ओके, तो यहाँ से आप जब डी फाइंड आउट करोगे, सो दिस विल कम 3.4 सेंटीमीटर। So this will be your final answer. Okay. So I hope आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी एंड आप लोग सॉल्व करे होगे। अगर इसका आंसर आ गया तो वेरी गुड, और नहीं आया तो यू नीड टू फाइंड इट आउट दैट वेयर यू आर डूइंग एनी काइंड ऑफ मिस्टेक एंड यू नीड टू करेक्ट योरसेल्फ। तो ये वाला न्यूमेरिकल यहाँ सॉल्व होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। सो जस्ट बिफोर, पहले आप जब क्वेश्चन कोई भी देखिए, कोई भी न्यूमेरिकल अगर आपको आता है तो पहले उसको एक बार ध्यान से पढ़िए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम तेजी से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, न्यूमेरिकल पढ़ लेते हैं एंड पूरा क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम सोल्यूशन पे चले जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड फर्स्ट ऑफ ऑल you need to find out that what is the question, what is asked in the question. Okay, तो पहले हम पढ़ते हैं। A mold cavity of 1200 centimeter cube volume have to be filled through a sprue of 10 centimeter length feeding a horizontal runner, ठीक है। Cross sectional area at the base of sprue is 2 centimeter square. Consider the acceleration due to gravity is this. Neglecting any frictional losses due to molten metal flow, the time taken to cool the molding cavity. So in this question, this is clear now that it is asking about the filling time. Filling time के बारे में पूछा जा रहा है। So first of all आपको filling time का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए ये कह रहा है क्या, fill through a sprue of 10 centimeter length feeding a horizontal runner. अब यहाँ पर कोई बात नहीं कर रहा है कि मोल्ड की हाइट कितनी है, ठीक है, इसके बारे में कुछ डिस्कशन नहीं हुआ है। सो यू नीड टू टेक दिस गेट एज अ टॉप गेट, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ के ही हमें समझ में आ रहा है कि स्क्रू वर्टिकली आ रहा है और सीधे हॉरिजॉन्टल रनर से आपके मोल्ड में कैविटी फिल हो रहा है। ओके, सो ऐसे क्वेश्चन में आपको टॉप गेट लेकर ही सॉल्व करना है। सो फॉर टॉप गेट टी फिलिंग इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ मोल्ड कैविटी अपॉन एरिया ऑफ गेट इनटू वीजी। सो दिस वाज योर फॉर्मूला। ओके, तो ये आपका फॉर्मूला था। अब यहाँ पे देखो क्या क्या चीजें हमारे पास हैं। ओके, सो हाउ मेनी क्वांटिटी वी हैव in this numerical problem. So we have a value of this volume is given, which is 1200. So this is 1200, it is given centimeter cube. So इसके लिए कोई problem नहीं है। Now we need to know what is the area. So यहाँ पर लिखा हुआ है कि cross sectional area at the base of sprue is 2 centimeter square. Okay, now sprue, अगर आप इसको थोड़ा सा यहाँ पे ड्रॉ करोगे तो ये ऐसे स्क्रू होता है और यहाँ पर आके ये ऐसे रनर पे मिलता है और रनर आगे जाके आपका जो भी मोल्ड कैविटी है वहां पे जाके मोल्टेन मेटल को पोर कर रहा होगा। नाउ दिस एरिया इज गिवन। सो अब यहाँ पर और कुछ क्वेश्चन में लिखा नहीं है, तो आप मान लोगे कि यही जो एरिया है ये गेट में भी सेम ही रहेगा। ओके, अगर यहाँ पर अगर लिखा रहता कि भाई गेट एरिया what is gate area, then you need to use that area, but in this case it is written then the base area of sprue is 2 centimeter square. So by default you need to consider that this 2 centimeter square is the area of gate. So AZ value is 2 centimeter square. You need to consider this value as the area of gate. Okay, because nothing else is mentioned in this question. Okay, so अपने ओर से ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो क्वेश्चन में दिया है आपको वही यूज करना है, आपको रिसर्च नहीं करना है यहाँ पे, अदरवाइज आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। ये गेट का ही क्वेश्चन है, 2020 में पूछा गया 2 नंबर में। ओके, नाउ वेलोसिटी के बारे में इसमें नहीं दिया है कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी एट गेट, बट द हाइट इज गिवन, स्क्रू ऑफ 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर जो आपकी हाइट है ये आपको दे रखा है। तो अगर हाइट दे रखा है तो वी नो फॉर्मूला। ओके, दिस हाइट इज गिवन h। सो अगर ये हाइट हमको पता है तो हमें पता चल जाएगा भाई h हाइट से अगर कोई मोल्टेन मेटल फ्लो कर रहा है तो व्हाट विल बी द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ दिस हाइट। सो द फॉर्मूला फॉर दिस विल बी 2gh। आई थिंक ऑल ऑफ यू नो दिस फॉर्मूला वेरी वेल, मैंने बताया है इसको। सो नाउ जस्ट पुट ऑल वैल्यूज हियर। सो सी what is happening, the volume is in centimeter cube. So let's put every value in centimeter per second. In case of this gravity
you just put value of gravity in सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर. ऐसे करने से क्या होगा कि आपका जो भी सेंटीमीटर वाला टर्म है वो कैंसिल आउट हो जाएगा और जो आंसर आएगा आपका सिंपल सेकंड में आएगा. ओके, अदरवाइज आप इसको चेंज करते हुए साई में भी चेंज कर सकते हो. यू कैन चेंज इनटू दिस वैल्यू इनटू मीटर स्क्वायर, बट आपका जो कैलकुलेशन है वो ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा. ओके, so we choose that thing which makes our calculation easier. Okay, so in this case we can opt this centimeter unit, because by opting centimeter unit we can solve this numerical very easily. So इसीलिए हम कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं, इसको एज इट इज सेंटीमीटर में रखना है. बस यहाँ ध्यान रखना सब कुछ सेंटीमीटर में होना चाहिए. नाउ द वॉल्यूम इज इन सेंटीमीटर क्यूब, द एरिया इज in also centimeter square. Now 2, and we know the value of gravity is given 9.81. For changing this thing into centimeter square you need to multiply this thing by 100, so it will be 981 into h is given as 10 centimeter. Okay, so यहाँ तक मुझे नहीं लगता है कोई आपको प्रॉब्लम हो रही होगी. and now after solving this you will get value which will be equal to 4.28 second. Okay, so what you need to do when I solve such kind of numericals, just pause the video and solve your numericals with me, and after solving your numerical just cross verify whether your answer is correct or not, and if your answer is correct then okay, if not okay, if your answer is not correct just cross verify that where you are doing any kind of mistake, और उस मिस्टेक को आप रेक्टिफाई करने का ट्राई करिए, उसको खत्म करने का ट्राई करिए. ओके, हमें क्या करना है, खुद को इम्प्रूव भी करना है. तो अगर गलती होती है तो घबराने की बात नहीं है, आप उस गलती को इम्प्रूव करना है, उसको खत्म करना है. ठीक है, गलतियां सबसे होती हैं बट यू नीड टू इम्प्रूव दैट मिस्टेक्स, जैसे कि आगे वो गलती ना हो. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10 भी आई थिंक क्लियर है, इजी था. ओके, नाउ अगेन सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन वाज आस्क्ड. अब देखिए यहाँ से ध्यान से देखिए, 2020 में आया आपका फिलिंग का क्वेश्चन, 2019 में भी फिलिंग का क्वेश्चन आया है, एक सेट में आया है. ओके, सो फिगर शोज अ पोरिंग अरेंजमेंट फॉर कास्टिंग ऑफ अ मोल्टेन मेटल ब्लॉक. Frictional losses are negligible. The acceleration due to gravity is this. The time to fill up the mold cavity of size this is. ठीक है, तो इसमें पूछा गया है भाई कि ये नीचे जो बेस है, मैंने इसको डायग्राम बना दिया है, ये गेट का क्वेश्चन था तो डायग्राम मैंने सिंपल ड्रॉ कर रखा है. सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ मोल्ड cavity. This portion is cavity. This portion is cavity, and this vertical portion is basically sprue, and cylindrical sprue is used here. Okay, and this sprue is used for pouring molten metal inside this cavity. Okay, now the height is given, the dia of this sprue is given, the dimension of this cavity is given. You need to calculate only the time, filling time. So again by observing this diagram only you can say that this is top gate. और टॉप गेट के लिए सिंपल सा, सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखा करो. फॉर्मूले से क्या होता है ना कि आपको पता चल जाता है कौन सी क्वांटिटी चाहिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चन देन राइट द फॉर्मूला. ओके, राइट फॉर्मूला कि क्या क्या कैलकुलेट करना है आपको. सो दिस इज द फॉर्मूला VGAZ. ओके, सो वी हैव वॉल्यूम ऑफ मोल्ड. ठीक है, सिंपल लिखते जाओ ना, जो है मल्टीप्लाई कर दो सबको एक साथ, 40 15 into 30. लिसन, again I am using all values in centimeter. Okay, why I am using all values in centimeter? Because all dimensions are given in centimeter, and I can find out the value of t in a second if I am going to use I am going to use everything in centimeter. ठीक है, सब अगर सेंटीमीटर में यूज करोगे तो सब कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको वैल्यू जो है सेकंड में आ जाएगा. सो आई एम यूजिंग हियर एवरीथिंग इन सेंटीमीटर, ध्यान रखना. If you want to solve this question by using all dimensions in meter, you can solve it. आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, डिफरेंस नहीं आएगा, बट सॉल्यूशन थोड़ा सा इजी हो जाएगा अगर आप यूज करते हो सेंटीमीटर में. तो अभी देखिए कैसे आसान हो जाएगा. सो दिस इज द वॉल्यूम. नाउ फॉर एरिया द डाया इज गिवन. ओके, so simply write pi d square upon 4. This will be your area. Now again 2 times, यहाँ पे आपको जो जी की वैल्यू है उसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर में मत रख देना, नहीं सब कायाकल्प हो जाएगा, सब गलत हो जाएगा. ओके, बिकॉज आई एम यूजिंग एवरीथिंग इन सेंटीमीटर, यू नीड टू राइट डाउन द वैल्यू ऑफ जी ऑल्सो इन सेंटीमीटर. सो अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन बताया था, सिंपली इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 981 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा.
into h की वैल्यू गिवन है 20 सेंटीमीटर. Okay, so after calculation you will find out that this value will be equal to 28.92 सेकेंड. आप खुद ही देखो, ये जितना हमने अभी थ्योरी पढ़ा है आपसे खुद बखुद क्वेश्चन हो रहा होगा. मुझे नहीं लगता है कि आप इसमें कहीं अटक रहे होंगे. कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही होगी क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होगी आपके पास, but I don't think you will face any kind of difficulty in such questions. Okay, because we have already covered all these kind of things in theory class, so it is very easy to solve numericals now. Okay, so in this way only you need to, first of all you need to clear your concept. After that, when you solve questions you will get confidence. Okay, so पहले हम थ्योरी कवर कर देते हैं, उसका क्वेश्चन सॉल्व करने से ऐसा कॉन्फिडेंस आता है. ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. अब आप देख रहे हो 2020 में भी एग्जैक्टली यू कैन सी द सेम क्वेश्चन वर आस्क्ड इन 2020 एंड सेम क्वेश्चन वर आस्क्ड इन 2019. तो हल्का फुल्का जो डायग्राम चेंज कर दिया, फॉर्मूला वही टॉप गेट का ही क्वेश्चन है, तो ज़्यादा चेंज नहीं है. ठीक है, तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे. So in question number 12, this is a theoretical question. The fluidity of molten metal of cast iron without any additional fluxes increases with increasing. अब ये कह रहा है कि जो फ्लूडिडिटी है मोल्टन मेटल का वो किसके साथ बढ़ती है. तो अगर याद हो आपको, इन लास्ट लेक्चर, इन फिफ्थ लेक्चर, आई हैव मेंशन्ड अबाउट फ्लूडिडिटी, प्रॉपर्टी फ्लूडिडिटी, एंड आई हैव आल्सो टोल्ड यू दैट विच टेस्ट वी यूज फॉर फाइंडिंग आउट द फ्लूडिडिटी ऑफ एनी मोल्टन मेटल. कौन सा टेस्ट करते हैं फ्लूडिडिटी फाइंड आउट करने के लिए, मैंने आपको बताया था. थोड़ा सा याद करिए, दिमाग पे जोर डालिए. मैंने बताया था आपको, स्पाइरल टेस्ट बताया था आपको. ठीक है, तो वहां से आपको अब याद आ रहा होगा, वहां पे मैंने सारी चीजें बताई थी कि कौन सी चीजें होती हैं, कौन से फैक्टर होते हैं जो इसको इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं. और मैंने आपको बताया था कि अब देखो, फ्रीजिंग रेंज अगर बढ़ा दोगे तो भाई जब फ्रीज हो जाएगा तो फ्लो कहां से करेगा, तो पहला वाला वैसे ही गलत हो गया. ठीक है, सरफेस टेंशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें. ठीक है, तो इस पर अभी ध्यान नहीं दीजिए. विस्कोसिटी बढ़ा दोगे तो भाई विस्कस हो जाएगा, तो फ्लूडिडिटी तो कम हो जाएगी. बचा गया सुपर हीट. मैंने बताया था जब आप हीट ज्यादा कर देते हो तो विस्कोसिटी कम हो जाती है और फ्लूडिडिटी बढ़ जाती है. तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. सो देखो, जो थ्योरी में हमने कवर करा है एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है. ओके, सो ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं और इसको आपको देने में, आंसर देने में अगर आपको आता है 5 सेकंड के अंदर इसको आंसर दे दोगे आप. ओके, तो आई थिंक this question number 12 is also clear. Now see, continuously from 2020 to 2020, 2019, 2018, एक क्वेश्चन हमेशा रहा है इस पोर्शन से जितना हमने अभी तक कवर करा है. ठीक है, तो ये जो डिजाइन वाला पोर्शन है, दैट्स व्हाई आई यूज्ड टू से दैट दिस गेटिंग डिजाइन पोर्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, तो इसको आप इसीलिए थोड़ा सा ध्यान से दीजिए, और ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ईजी है. देखिए, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं ऐसे ही. ठीक है, तो अगला क्वेश्चन में क्या कहता है, अ स्प्रू इन अ सैंड मोल्ड हैज अ टॉप डायमीटर ऑफ, स्प्रू का टॉप डाया दिया है, ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन, एंड हाइट ऑफ 200 mm. द वेलोसिटी ऑफ मोल्टन मेटल एट द एंट्री ऑफ स्प्रू. अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान देने वाली बात है, हमेशा हमें जो क्वेश्चन मिलता है कभी कभी वो बॉटम ऑफ द स्प्रू मिलता है. यहाँ पर स्प्रू के अंदर जब मोल्टन मेटल आ रहा है उस समय की वेलोसिटी दे रखी है. मतलब पोरिंग बेसिन से व्हेन मोल्टन मेटल्स after pouring basin when molten metal is entering into the sprue, उस समय की velocity given है. Okay, assume acceleration due to gravity is this and neglect all losses. If the mold is well ventilated, the velocity of the molten metal at the bottom of sprue. Okay, so for solving this question it will be better if you manage to draw a diagram. अगर आप इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हो ना तो ये क्वेश्चन आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा करना क्या है इसमें. सो पहले हम इसको ड्रॉ करते हैं. तो स्टार्टिंग में पहले क्वेश्चन पढ़िए. टॉप डायमीटर ऑफ स्प्रू इज 200 mm. तो लेट्स से दिस इज योर स्प्रू. ओके, सो दिस इज योर स्प्रू. ओके, this is entrance. Let's say this is 0.1, this is 0.2. Okay, and now entry velocity is what? 0.5 meter per second. अब देखो, अब एंट्री वेलोसिटी अगर यहाँ पर इतनी है तो ऑब्वियसली कुछ लेवल तक तो यहाँ पे फ्लूइड होगा.
सॉरी मॉल्टन मेटल होगा या कुछ हेड के साथ तो आ रहा होगा यहाँ पर आपका जो भी मॉल्टन मेटल है। ओके, अब उसको आगे देखेंगे वो हेड कितना है, बट अभी हमें पता है कि at point 1 the velocity of inlet is 0.5 meter per second. Okay, now what is given? The diameter. Okay, so I'm using suffix 1 and 2 for these two cross section area. So d1 equal to 20 mm. Okay, so d1 आपका 20 mm given है और this height is given. This height is 200 mm. क्योंकि स्क्रू में यहाँ से एंट्री हो रही थी, पूरा हाइट नहीं गिवन है, ध्यान से आप डायग्राम बनाना, ये पूरा हाइट मत बना देना 200 mm का, बिकॉज द फ्लूइड इज एंटरिंग फ्रॉम दिस साइड ओनली एंड दिस इज द हाइट ऑफ स्क्रू, दिस इज नॉट स्क्रू, दिस इज पोरिन बेसिन एरिया, तो वो अलग चीज है। ओके, सो h इक्वल टू लेट्स से 200 mm. नाउ वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज v2 and v1 is given that is 0.5 meter per second. Now we will say कि why don't we use this continuity equation a1 v1 equal to a2 v2 and just find out what will the velocity at v2 at point 2. Okay, but the problem is in this question there is nothing mentioned about this cross section 2. Okay, cross section 2 पे क्या diameter होगा कहीं लिखा ही नहीं है, we don't have any information about this cross section 2, we don't know the value of this area. So that's why we can't use this continuity equation. Now what we can do now then we know we can use the fluid dynamics equations, Bernoulli equation, for finding out the velocity at point 2. But for that we need to know the height. Okay, then you will say, sir, why don't you use this directly 200 meter height, mm height? Because the initial velocity of this molten metal is 0.5 meter per second. This is saying that there is some head, यहाँ पर फ्लूइड के आने पर भी कुछ यहाँ पर हेड है, so we need to add that head also for finding out the exact velocity at section 2. So उसके लिए पहले तो मुझे ये पता करना पड़ेगा कि at section what will be the head of this liquid. Okay, and for that I am going to use this formula कि कुछ अगर हाइट से फ्लूइड आ रहा है, so that formula will be 2gh. Okay, we know that the molten metal is coming from some height, that's why its velocity is 0.5 meter per second, and if not then there would be some head, so we need to find out the value of that head. Okay, so write down this formula only, and this here we know that this is 0.5 और यहाँ पे अभी सब कुछ मीटर पर सेकंड में है, तो हम भी सब कुछ मीटर पर सेकंड में ही पुट करेंगे because velocity is in meter per second. So G 9.81 it is given and h we need to calculate. Okay, from this calculation आपको पता चलेगा कि जो h की वैल्यू है वो आएगी 0.01275 meter. Okay, so just calculate this thing and check whether this value is coming or not. ये वैल्यू आ रहा है कि नहीं, एक बार इसको आप क्रॉस वेरीफाई करो. Okay, now that अब थोड़ा ये h जो है इसको मैं क्या बोलूँ, थोड़ा डायग्राम में इसको h1 बोल देता हूँ. ओके, सो दिस विल बी योर h1, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा इस चीज से. ओके, सो दिस इज योर h1. नाउ यू नीड टू फाइंड आउट दैट व्हाट विल बी द वैल्यू एट सेक्शन 2. सो फॉर v2 you will simply write same equation h plus h1. Okay, because there is some initial height at section 1 also, so you need to add this thing for finding out the final velocity at section 2. So this formula will change into 2 times 9 into 81 into bracket में 0.2. I've just changed this 200 mm into meter, तो ये हो जाएगा 0.2 मीटर प्लस 0.01275. अब थोड़ा यार पीपीटी में ऐसे लिखते हैं तो टेढ़ा बड़ा हो जाता है, बट आई थिंक कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हो ही गया होगा. जस्ट सॉल्व दिस थिंग, ये ब्रैकेट के अंदर है. ओके, now after solving what you will get the value v2 is 2.04 meter per second. Okay, so you need to solve this question and after that just verify that whether your answer is correct or not.
सो ऐसे क्वेश्चन आपके गेट में आते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या है ना, इन दिस क्वेश्चन many will consider this 200 mm as a final height, and they will directly use this formula and take that option which will be of this value. Okay, तो आप क्या करोगे, सिंपली इसको 200 का लोगे, ये h के जगह पर आप you will directly put this 200 value and you will calculate and some value will come and you will see the option near about that and your answer and you will just tick it. ओके उसको टिक कर दोगे और आपका वहीं पे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और ऐसा जरूर होगा कि वो आपका जो गलत वाला ऑप्शन आएगा ना, ये 200 mm लेने के बाद वो ऑप्शन पक्का मिलेगा आपको उस पर, क्योंकि when the paper is designed they also find out the proper combination of false options। false option के भी वो बहुत ही अच्छा सा कलेक्शन बनाते हैं कि वो अगर आप मिस्टेक करो तो तुरंत आपको गलत वाला ऑप्शन आपको मिल जाए। तो इसीलिए जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो बहुत ही आपको केयरफुल होने की जरूरत है। एंड जस्ट स्टार्ट दैट, वो जो केयरफुल होने की जरूरत है वो अभी से स्टार्ट करिए आप। solve every question like you are solving in examination only. So if you are going to solve this question number 13, consider that this question is the same question is asked in your GATE exam and you are writing that GATE exam right now. Okay, so just solve this question with that intensity. तो ऐसी इंटेंसिटी के साथ आप क्वेश्चन हमेशा सॉल्व करोगे तो आप एग्जाम में भी वैसा ही करोगे, आदत पड़ जाएगी आपको और गलती होने के चांस कम हो जाएंगे। ओके, सो आई थिंक दिस क्वेश्चन इज क्लियर। थोड़ा सा ये अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि इसमें हाइट वाला कॉन्सेप्ट था। मुझे लगता है कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, एक और थ्योरी क्वेश्चन देख लेते हैं। द पार्ट ऑफ गेटिंग सिस्टम विच रेगुलेट्स द रेट ऑफ pouring of molten metal is, this question is asked based on the definition of one thing which I have discussed in previous lecture। ये सिंपल डेफिनेशन पे ही क्वेश्चन पूछ लिया गया है। अगर आपको याद हो मैंने एक किसी क्वांटिटी का डेफिनेशन बताया है फ्रॉम दिस ऑप्शन, among this option you can find it out। ओके, पावर इन बेसिन ये भैया नहीं, ये तो रिजर्वायर का काम करता है। रनर क्या है, ये तो आपका मोल्टन मेटल को फीड करता है स्प्रू से आपके जो भी आपका कैविटी है। इनगेट क्या है, कुछ लोग कहेंगे सर इनगेट होगा क्योंकि इनगेट से ही तो आपका मोल्टन मेटल जाता है फॉरेन बेसिन में, सॉरी कैविटी में, मोल्ड कैविटी में। बट आप याद करें तो मैंने आपको बताया था कि अगर एलिमेंट गेटिंग एलिमेंट डिजाइन करते हैं जब, तो सबसे पहला चीज जो हम फाइंड आउट करते हैं दैट इज चोक एरिया। The first quantity which we calculate before designing any gating element is choke area, because choke area is the only thing which regulate, which actually में जो choke area है वही गवर्न करता है आपका जो भी फ्लो रेट है मोल्टन मेटल का कैविटी का, वही गवर्न करता है। ओके, सो ये डिफिनेशन मैंने आपको बताया था, एग्जैक्टली यही डिफिनेशन बताया था और इसी पे आपको क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, तो choke area basically meters the flow of molten metal inside the cavity। ये आपका डिफिनेशन मैंने बताया था और सेम थिंग यहाँ पे लिखा हुआ है which regulates the rate of pouring of molten metal। okay, so choke area is the choke, basically choke is the right answer। तो अगर किसी ने डिफिनेशन एक बार पढ़ा होगा उसके दिमाग में एक बार घूम गया होगा, हाँ चोक एरिया क्योंकि सबसे छोटा एरिया होता है और वही फ्लो को रेगुलेट करता है। चोक एरिया इज द स्मॉलेस्ट एरिया इन योर गेटिंग सिस्टम, सो दिस रेगुलेट्स द रेट ऑफ pouring मोल्टन मेटल का जो रेट है फ्लो को होने का, उसको ये रेगुलेट करता है। Okay, I think this question is clear. Now question number 15. A mold having dimension this into this into this, ये आपका वॉल्यूम हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दोगे तो चलो समझ में आ गया। is filled with molten metal through a gate with height h and cross section area a। Okay, the mold filling time is t1, the height is now quadrupled and cross sectional area is halved, मतलब आधा कर दिया गया है, और क्वाड्रपल का मतलब 4 गुना कर दिया गया है। The corresponding filling time is T2, find the ratio T1 is to T2। okay, so पहले क्वेश्चन को समझते हैं हुआ है क्या यहाँ पे। so this is the dimension of your mold cavity। okay, ठीक है। now this is filled with molten metal by using a gate। okay, height is h। okay, height is h। so first of all nothing is mentioned about the mold height और ऐसा कुछ नहीं बोला गया है। so let's consider this as a top gate। so for top gate filling time is equal to volume upon Kg into Vg। now
you can see in numerical in this problem the question talks about the height. ओके और हमारे इस फॉर्मूले में हाइट तो है ही नहीं, तो पहले इस फॉर्मूले को हम हाइट के टर्म में लिखते हैं. तो आप कहोगे सर हाइट के टर्म में कहाँ से आ जाएगा? सो इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूला ऑफ दिस Vg, okay, by using fluid concept we calculated that what will be the velocity, okay, at the gate, and that formula is 2gh. यही तो पढ़ा था हमने कि अगर h हाइट से अगर फ्लूइड फ्लो कर रहा है, if any fluid is coming from height h, then what will be its velocity? It will be equal to under root 2gh. ओके ये फॉर्मूला हम कई बार यूज कर चुके हैं, आपको याद तो हो ही गया होगा. ओके सो दिस इज द फॉर्मूला. वॉल्यूम एंड अगेन द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज ए. ओके नाउ एवरीथिंग इज ओके. ओके अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम सिंपल थोड़ा T1 लिख लेते हैं. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन T1 विल बी इक्वल टू, लेट्स से वॉल्यूम इज V, एरिया इज A and your height is h. So this will be your T1. Everything is correct. Now I need to write the expression for T2. For T2 the question is saying that the height is quadrupled, means जो height है वो 4 गुना हो गया है. So simply write volume is same, so no need to worry about volume. Just increase this height by 300%, मतलब 4 गुना कर दो सिंपल सा. सो 2g इंटू 4h. ओके आई थिंक दिस इज क्लियर. क्वाड्रपल का मतलब ये होता है 4 गुना करना, ठीक है. एंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज हेल्प, मतलब इसको आधा कर दो, सो इट मीन्स a/2. नाउ सिंप्लीफाई दिस थिंग, सो यू विल सी ये ऊपर का तो जैसा है वैसा ही रहेगा, a/2. and now this 4 will come outside, so it will again become 2, and अंदर में आपका 2gh रहेगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. फाइनली आपको जो T2 का एक्सप्रेशन मिलेगा वो होगा Vm अपॉन a टाइम्स अंडर रूट 2gh. and if you compare this equation number 1 and 2, then you will say ये दोनों एक ही तो हैं. you will say these both equations are same. it means T1 upon T2 equal to nothing but 1. okay so this is your answer. okay अब आप मुझे ये बताओ, ये इतना क्वेश्चन देखने के बाद आपको कहीं भी कुछ डिफिकल्टी फील हुई? ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं. okay so if you clear all your concept through theory lectures, through by reading books or by watching this video lectures, तो आपको ये क्वेश्चन कितने आसानी से आप सॉल्व कर ले रहे हो. okay so it is important to clear your concept before solving the questions, and after solving question you will get confidence. अब जैसे ये वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो गया, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ओके नाउ आई एम एबल टू सॉल्व दिस गेट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, नाउ आई कैन सॉल्व अदर क्वेश्चंस आल्सो. ओके सो इसीलिए अगर आपको ये सब थोड़ा सा और खुद को इम्प्रूव करना है तो थोड़ा और प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है. और क्वेश्चंस मैं ऐड करूंगा वीडियोस में, जिससे कि गलतियां कम से कम हो और आप ज़्यादा इंप्रूवमेंट आपके अंदर हो. तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा पसंद आता है तो यू कैन शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, अमंग योर फ्रेंड्स. ओके सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विद riser design and solidification time. That is also very important concept because one question from this gating element and few questions from that solidification time and riser design is also every time ये दोनों portions से question आपके exam में पूछे गए. Every time one question from your solidification time and one is from your filling time. So if there is two set of paper in gate examination, in one set they will ask about this filling time, then there might be possibility that in other section other part they will ask about the solidification time. So you need to cover all these portions so that कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत ना हो, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन जो आते हैं वो आसान आते हैं. तो अगर ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो गलत होने के चांसेस तो बहुत ही कम हो जाते हैं. ओके सो थैंक यू ऑल. You can share this video among your friends.